हाय हाय हाय। और समझ नज़ीर आई गल। साहब समझ आ गई। नज़ीर साहब और तुसी बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम एक छोटा ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। जी फरमाए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰੀ जी ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? जी पूरी दुनिया ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ जी ਸਿਰਫ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ हाँ जी। ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆ ਗਿਆ? मसीह किस तरह पूरी दुनिया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत च ने ते आप पूरी दुनिया वास्ते तो आप दा शागिर्द भी पूरी दुनिया वास्ते। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं तो मतलब है की मकसद है ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ रसूल ਮੈਂ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆ। वो तालीम ईसा दुनिया इब्ने वास्ते नहीं मरी थी ना। मूसा अलैहि सलाम दी तालीम दुनिया में पूरी दुनिया वास्ते नहीं सी। ईसा ते ईसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम पूरी दुनिया वास्ते है ते उन्हां दे उम्मत च आए ने ते उन्हां ने भी पूरी दुनिया वास्ते काम करना। अच्छा अच्छा अच्छा। और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ? ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी जी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी ठीक। यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले हम्म, मुशरिकीन से मिल जाएं बेशक। और बुतों की परस्तिश करें, और मेरी उम्मत में अनकरीब 30 झूठे निकलेंगे ताबेदार। ठीक है। इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि ठीक है। मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ? ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਚ, ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਬੀਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ 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 ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਆਏ ਨੇ ਕਿ 40 ਆਏ ਨੇ 50 ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਝੂਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ। वो कह रहे हैं मेरी उम्मत में अनकरीब 30 झूठे निकलेंगे, हाँ जी हाँ जी इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि ठीक। मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो फिर ये मिर्जा साहब किथों नबी आगे जी? अच्छा वो तुसी एक हदीस ते जरूर है खातम नबीयीन फरमाया ना, वही फजीलत अपना दस रहे ने फजीलत शरीयत वाले नबी। खातम नबीयीन दा मतलब है कि मैं जेड़े शरीयत वाला नबी है ना, अफजल नबी है। वो नहीं लिखा शरीयत, अफजल, फजीलत, ए तीनों लफ्ज तुसी कोलू ला रहे हो। नहीं नहीं नहीं, खातम नबीयीन जेड़ी है एदा की मतलब? खातमुन नबीयीन दा मतलब है नबियों को खत्म करने वाला। ए मिर्जा साहब दा तर्जमा है, मेरा नहीं है। क्या एक एक यही सिर्फ है या और भी होएगा इसदा मतलब? सिर्फ एक ही है, यही तर्जमा है। खातमुन नबीयीन दा मतलब मिर्जा साहब ने एक ही कीता है, मैं तो नबियों को खत्म कुरान करना। मैं अच्छा कुरान करीम में जितने तर्जमे पढ़े ने उहदे च किधरे भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि खातम नबीयीन जेड़ी है नबियां दी मोहर। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ? है जी कुरान पाक सील ऑफ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਜਮੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮੇ ਚ ਵੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਉਹਨੇ 2-4 ਮਫਹੂਮ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਫਹੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਬੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-3 ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 2-3 ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਓਂ को खत्म करने वाला ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ। ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਤਮ ਨਬੀयीन ला नबी बादी। जी ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀयीन ला नबी बादी, ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। नबीउल्लाह होंगे तो फिर मसीह मऊद को नबीउल्लाह करार दिए कि ईसा इब्ने मरियम को नबीउल्लाह करार दिए? ईसा खुदा जानता है। इब्ने मरियम नाजिल होंगे तो आप वो समझ रहे हैं ना, बनी इसराइल वाले वो तो हैं ही नहीं ना, वो तो फौत हो गए ना। अच्छा, ये उम्मत मुहम्मदिया के मसीह मऊद है, मसीह वादा जिनका, उनसे मुवासलत दी गई है ना, उम्मत मूसविया के साथ मुवासलत बताई गई है। नज़ीर साहब, अल्लाह जानता है सानू तुहाडे नाल कतन कोई दुश्मनी नहीं, मोहब्बत है और खुदा ते रसूल दा वास्ता है। अकीदत अंधी ना करो, खुदा रसूल दा वास्ता आपने कोलों चीज़ां हदीस दे अंदर मत पाओ। इत्थे नबी दी हदीस इस कदर मुख्तसर और इतनी खूबसूरत है कि अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी, के मेरे बाद हूँ कोई नबी नहीं है। ठीक हो गया? ऐते होगी एक गल। दूसरी हदीस में भी फरमाया ना मेरे बाद नबी भी है। किड़ी हदीस पॉइंट थे कि किड़ी हदीस क्या मेरे बाद नबी किते भी मसीह मऊद दे लफ्ज इस्तेमाल नहीं होए। ओ हदीस दसो जिथे क्या होवे कि मेरे बाद नबी भी है, ओ किड़ी हदीस है? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਨਬੀਉल्लाह ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀਉल्लाह ਹੋਗਾ ਨਬੀਉल्लाह। भाई मसीह मऊद दे अल्फाज नहीं क्यों तुसी ऐड कर रहे जे? मसीह मऊद दे अल्फाज ही पूरी हदीस दे ज़खीरे च नहीं मौजूद, किसे वास्ते भी नहीं है। तुसी मुझे दिखा दो यार आमिर भाई, ਉਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਸਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। नहीं सामने कट के हदीस लगा देंगे। स्क्रीन ਮੌਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਦੀਸਾਂ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਹੈ ਸੁਬਾਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ। दुरुस्त है जी, दुरुस्त है, हदीस दुरुस्त है, दुरुस्त है। क्या आते नजीर साहब दुरुस्त है? जी दुरुस्त, हदीस दुरुस्त है। नहीं बिल्कुल, उन्होंने खबर दी है हुक्म ला रहे ने और खबर देखो ना, हुक्म ला रहे सुनो तो सही ना। जी मेरी स्क्रीन जरा बड़ी करना। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਦਸ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਦਮ ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਬੂ ਕਲਾਬਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕੜ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹਦੀਸ ਦੇਖੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਰਾਵੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਦਸ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕ ਮਾਰਨੇ ਠੁੱਡਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ।
ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਮਾਰੀ ਇਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਬਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜਰਾ ਤਦੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਬੀ ਤੇ ਜਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਾਬੀ ਤੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਾਨੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਨਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਸਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ 14 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਬੀ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਉ ਰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਨ ਝੂਠੇ ਸਨ ਹਾਫਜ਼ਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ 14 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨੋ ਦੱਸ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ दूसरा मेरा भी क्वेश्चन ले लिया जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਵੀ की सेहत में कलाम है ਇਹ ਕਿਨੇ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤਦਲੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਦਲੀਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤਦਲੀਸ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦੀ 80 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਖਲੀਫਤੁल्लाह ਮਾਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਲੀਸ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਪਾਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਡੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਡੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸਭ ਬਹੁ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਦਮ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿਸ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਰਾਵੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਰਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜ਼ਈਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਕਾਬਲੇ ਤਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਬੋਇਤ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਫਰ ਫਬੋਇਤ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਫਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਘੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਇਮਾ ਤੇ ਤਾਬਈਨ ਉੱਤੇ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਇਮਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਹਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਜਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਲੀਜੇ ਆਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ
ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਖਾਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹ ਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਲੰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਦੀਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਐਨਜੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਬੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਬਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਲਾਮ ਠੀਕ ਉਹੀ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਫੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਜੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸਕੈਨ ਲਾਓ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਕੈਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ ਜਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਲਿਮ ਬੰਦਾ ਆਲਿਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਲਿਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਇਲਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਵੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੇਂ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਲਮਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਐਡੀ ਐਮ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਓਏ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਬਾਈ ਤੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। इतने के गट्स अपने अंदर पैदा करो तो जाओ दे के सवाल करो कि सवाल मेरे के सामने रखा नहीं, या मेरे को सबूत दे या मेरी उन्होंने को जान छुड़ा, मैंने इस गल का जवाब दे। फिर ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ ਜੇ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। एक आमर भाई मौजूद होणगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਇਹ ਕਿ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਲੈਣਗੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਓ, ਥੱਲੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਾ ਸ਼ਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਜਿਜ਼ਾ ਭਾਈ। ਆਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆਵੋ, ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਰਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਜੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਿਜ਼ਾ ਭਾਈ ਚਲੋ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਦੀਰ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਨੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੀਏ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, इसकी सेहत में, इसके सनाद में, यार पढ़ के सुनाना, मेरे को पढ़ना नहीं चाहता कि इस रावी की सेहत में कलाम है। सिर्फ ज़िया भाई ये पूछना वा कि ये ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਮੁਹੱਦਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਬਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਰਾਵੀ ਤੇ लिखा है सुभान के मुतल्लिक अज़दी का कौल है कि इस रावी की सेहत में कलाम है। इस तरह सुभान के मुतल्लिक, सुभान मतलब जेड़े हज़रत सुभान अल्लाह ताला ने ते इसकी रावी की सेहत में कलाम पूछना वा कि किन्ने ਇਹਦੀ सेहत ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? सहाबी रसूल। ਚੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ? चलो ਉਹ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਕੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਕੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਸਕੈਨ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਕੈਨ ਜੇ ਖਾਦਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਲਾਈ ਹੁਣ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੈਨ ਲੈ ਲਓ। अच्छा बाय द वे नहीं भैया ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਦੀ का कौल है, ਅਜ਼ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜ਼ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਲ ਵਰਦਾਤ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? जी जी असल वारदात पई है कि उसने दजल ले देता है कि किसी और सुभान ना ने रावी ते जरा हुई उसी मिजान उल इतदाल वगैरह आहो ठीक है इंज करदा वा, वो जरा ने ठोकी है। सैफी दी गुजराती दी भी यही आदत है, ये गुजराती दी भी आदत है कि जरा ਚੱਲ ਵੀ साहबी रसूल ते होंदी नहीं ਚਲਾ ना। ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੈਫੀ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ। ਸੈਫੀ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਰਾਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਾਲਬਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਫੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਈਮ ਭਾਈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। बाद ईसा इब्ने मरियम आएंगे। अब जो जिसको आप मानते हैं ना नबी, उनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है जी। तो जो आने वाले थे वो इब्ने मरियम थे। अब कितना फर्क है? कल कोई और बंदा उठ के कहेगा कि मैं नबी हूँ, और कितनों ने दावा भी किया हो, तो बंदे उनको कैसे मानेंगे? नहीं, ये देखें, मुझे एक बात बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्ने मरियम के आने का जिक्र किया है, ठीक है जी जी। अगर तो ईसा इब्ने मरियम जिंदा हैं, जैसा कि आपका अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम जिंदा हैं, फिर तो ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई वही ईसा इब्ने मरियम आएगा। तो मतलब क्या हुआ? बात वहीं से शुरू होगी। फिर दोबारा देखें, जहां से मैं आपको लेकर आ रहा था कि मैंने आपको कहा देखें मुझे ये कायल कर दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा मौजूद है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा मौजूद हैं तो फिर तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हो जाऊंगा कि हाँ जी वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर आसमान पे जिंदा मौजूद नहीं है और फौत हो चुके हैं, तो फिर
जिस ईसा के आने का जिक्र है वो कोई और ईसा है, वो वाला ईसा नहीं है। नहीं, फिर उसका नाम ही नाम तो ईसा बताया, मिर्जा नाम तो गुलाम दिए जाते हैं, बताया नाम तो भाई। खसूसियात की बिना पर भाईजान लोगों को दिए जाते हैं, नाम खसूसियात की बिना पर दिए जाते हैं लोगों को। ईसा कहा जाता है, यूसुफ कहा जाता है लोगों को, जो खूबसूरत होता है तो कहा जाता है तुम्हारी खूबसूरती ऐसी जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कहा गया ये, तो ये नाम दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर नाम दे दिया गया है किसी को उसकी खसूसियात की बिना के ऊपर कि उसके अंदर अगर ईसवी खसूसियात होंगी आने वाले के अंदर, अगर उसको ईसा इब्ने मरियम कह दिया तो क्या हो गया? अच्छा, आप कोई ऐसी एक हदीस ही दिखा दें जिसमें ये हो कि आप मुझे देखें, मेरी बात सुने, वही ना हम लकीर के फकीर बने हुए हैं, एक ही जगह लकीर पीटे जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये साबित कर दें आप कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है, मैं कायल हो जाऊंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वही भाई जब मैं हदीस शरीफ पेश करता हूं तो आप फिर अस्सलाम वालेकुम। इधर सैफी साहब बैठ। यार एक मिनट रुक जाए, अभी सैफी साहब जरा ना बिजी हैं। अच्छा चलो 1-2 मिनट के लिए वो आपकी बात जो आप कहते हैं कि वो खुसूसियात थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खुसूसियात फरमाई हैं जो ईसा आएंगे वापस? आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं देना, इसका मतलब नहीं, आपने क्या सवाल किया है? मैंने जो आपसे सवाल किया है कि मुझे साबित कर दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा मौजूद है। भाई ये मैं फिर आपको हदीस के रेफरेंस दे रहा हूं। हदीस दें हदीस। अच्छा आप अपनी बात जारी रखें, 2 मिनट में रेफरेंस निकाल लेता हूँ। नहीं, मेरी कि बात जहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जी मेरी बात यही ठीक है। नहीं, आप अपनी अब ये मलक कैसर हैं जो हैं वो बात जारी रखें, 2 मिनट मुझे म्यूट कर दें, मैं अपना आपका एक बंदा है नीचे नजीर साहब, उनको ऊपर उठाएं और उनका कोई सवाल है। आपका बंदा है नजीर ए, जी करते हैं, उनका कोई सवाल है, उनको ऊपर उठा लें। हमें सब नजर आ रहा है, हम कर लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं, उठा लेते हैं उनको भी। जी और जो भाई कौन कौन आए हुए हैं? मलिक कैसर साहब आपका कोई सवाल है? आप दूसरे भाई यही है ना कि नजीर ए साहब को उठाओ, उनका कोई सवाल है, उनको ऊपर उठाओ। आपका कोई सवाल है? आप अभी अरे आपका क्या कोई सवाल? एक मिनट रुके जरा रुके। आपका क्या सवाल है भाई? आपका कोई सवाल है मलिक साहब? नहीं, नजीर ए साहब को उठाओ ऊपर, उनका सवाल है। तो जब बारातियों में आप शामिल हैं ही नहीं तो पिंडाल में प्लेट लेके खड़ा होने से क्या फायदा? नीचे बैठो फिर आप, जब सवाल नहीं आपका कोई। हाँ भाई अगला बंदा। आज साला दावत किसी की है, लंगर किसी का बट रहा है, लौंडी किसी की ब्याही जा रही है, लौंडा किसी का है, ये हम ही प्लेट लेके खड़े हैं रास्ते में। अब बात नहीं करनी है, क्यों आए हो ऊपर भाई? चलो भाई अगला बंदा। जहीर भाई मौजूद हो आप? फिर से बिजी हो गया, स्पेस बनाओ भाई। ब्रॉड हैंग हो रही है भाई। मसवर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ डबल टैप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है। डबल टैप करें सर। भी आपकी आ रही है। ब्रॉड हैंग हो रही है भाई। तुम आ जाओ। नज़ीर को कॉल करें, बाकी खुद नीचे बैठ के जो है ना वो बस नीचे बैठ के फिर मशवरे देने हैं। अच्छा ये अरे कुछ नहीं, पहले आवाज आ रही है मेरी? पहले भी आए थे। जी आ रही है। जी सैफी भाई आ रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ब्रॉड हैंग हो रही है भाई, डबल टैप कर लो मिल के एक बार, ठीक है? रिपोर्ट तो नहीं कर रहा है कोई भाई? रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है। ये नीचे आए हुए हैं डॉक्टर टोई, तो इनका 2 नंबर बंदा। डॉक्टर टोई कोई नहीं, इन्हें भी अपने अरमान पूरे करने दो। करो भाई, जी भर के करो। करना। अच्छा भाई कहाँ है भाई ये नज़ीर साहब? ये बात पता है, मैं बताता हूँ क्या हुई होगी। बात ये हुई होगी कि नज़ीर साहब से इनकी बात चल रही होगी, ठीक है ना? अब इन्होंने कोई बात नज़ीर साहब के सामने पेश करी होगी। नज़ीर साहब हमारे आलिम बंदे हैं, इन्होंने कुछ कह दिया होगा वहाँ जाकर। अब वहाँ लागबाजी चल गई होगी,
नज़ीर साहब ये कह रहे होंगे कि नहीं मेरी बात सही है, और उधर से वो कह रहे होंगे नहीं ये तुम्हारा मौक़िफ़ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मौक़िफ़ है, जमात का मौक़िफ़ नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बात पर शक है तो जज साहब के पास चलो, इन्होंने सालों ने मुझे जज बनाया हुआ है, अदालत लगा रखी है, जैसे मैंने इनके सारे केस होंगे लाकर यहाँ थोप देंगे मेरी ब्रोड पर, अजी ये बता दो और वो बता दो, और यार वो फला ने ये कह देता, डिमके ने ये कह देता, इसके बारे में हमें क्या करना है साफी भाई, फलाना डिमकाना डिमकाना फलाना, वो चल रहा होगा इनका मसला। दावे से मैं कहता हूँ वही बात होगी, कहो तो चाहे नज़ीर साहब को ऊपर उठा कर देख लो आप। नहीं यही बात है, आप सही कह रहे हैं सैफी भाई। ये डिंगचू जो है ना, इनमें से कोई नहीं आएगा जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक नहीं आएगा। ये हर 2 दिन के बाद ना अपनी थोथनी लेके नीचे पहुंच जाते हैं, और जाके अपनी ब्रॉड चलाओ, वहाँ पे गालियाँ गुलियाँ दो माँ बहन की, जाओ शाबाश, यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो। क्या करें उमर भाई, वहाँ क्या करेंगे? आ जाते हो, ले लो मुझे, ले लो अच्छा, प्लीज ले लो मुझे, कोई नहीं लेता मुझे, अम्मी प्यार नहीं करती मुझे, अब्बू प्यार नहीं करते मुझे, कोई भी नहीं करता, चलो निकलो। बहुत वहाँ क्या करेंगे? जाओ शाबाश, 4-5 बंदे बैठे होते हैं वहाँ, बड़ी दफा एम्बुलेंस में जा चुके हुए हो, जाओ शाबाश। अब तुम लोगों का शौक बन गया हुआ है बिजनेस चमकाने के लिए, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, हमें चंदा दो, हमने आना है, कोई नहीं पूछता हमें, हम पूरा दिन बैठ के भौंकते रहते हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉलोवर बनाने। निकलो शाबाश, कोई नहीं लेगा चंदा, बेचारों को फिर भी नहीं मिलता। जाओ शाबाश, कोई भी नहीं लेगा, मेरे जिंदा रहते इन ब्रॉडों पे कोई नहीं लेने लगा, जाओ शाबाश। अपनी ब्राडो पे होते हैं 5-6 बंदे, अब उनको क्या बताएं, वो भी बेचारे गालियां सुन सुन के तंग आ गए हैं। और चल रहे नज़ीर साहब, उनको ही ले लें ऊपर। ये अपने गैरम जी भाई हैं, साहब हैं नीचे, तो कॉल डालें भाई। 1 मिनट, ले लो यार, ले लो, पूछ लेते हैं अभी क्या बात। अच्छा जी, साकी साहब सलाम अलैकुम। हाँ जी, अब यार चुप करके ना अपना मुंह बंद रखो, कैसर साहब मशवरे ना दो यहाँ आके। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नज़ीर साहब रुके ना, नज़ीर एक मिनट, ज़हीर भाई 1 मिनट। अच्छा नज़ीर साहब, आप फिर वहाँ लेने क्या जाते हैं जब आपने यहाँ आना होता है? अरे जुनेद भाई बताए तो सही। नहीं अच्छा ठीक है, वो कर लेते हैं बात। नज़ीर साहब आप वहाँ क्या लेने जाते हैं? ज़हीर साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुने। नज़ीर साहब आप वहाँ क्या लेने जाते हैं जब आपने यहाँ आना होता है? तो यहाँ क्या हो रहा है? आप यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ आके मैसेज क्यों नहीं देते? बिल्कुल बुरी बात है, वो गुस्ताख है। जुनेद भाई हर बंदे की ना अपनी मर्जी, छोड़ दे। अजीब लोग हैं वो तो है ही, वो तो है ही गुस्ताख हैं, वो तो है ही गुस्ताख हैं। नज़ीर भाई आप अपना सवाल कर लें यार। नज़ीर भाई चले बता दें कौन सी हदीस है, वो उस पर कर लेते हैं बात। साफी भाई आप एक दफ़ा ना, नज़ीर भाई एक दफ़ा म्यूट करें, नज़ीर भाई एक दफ़ा म्यूट करें, 1 मिनट म्यूट करें। साफी भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आप बैक पे गए हुए हैं, तो एक दफ़ा ना वो बिल्कुल रीस्टार्ट करें और उसको टिकटॉक को ना, ताकि वो बाद में ख़राब ना हो। जी नज़ीर भाई अभी ज़रा माइक खोलें, आपके नीचे किसी को आवाज़ नहीं जा रही। अभी करें जरा बात। अच्छा अभी आवाज आ रही है नीचे नज़ीर साहब की सबको? आपकी नहीं आ रही। चलें बताएं नज़ीर भाई क्या सवाल है, कौन सी हदीस है जिसकी समझ पैंट क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ किनको नहीं माना जा रहा? किनको नहीं माना जा रहा? नज़ीर भाई आप इनके सामने ये सवाल रखें ना कि अच्छा बताएं कि ये ज़ईफ हदीस है, उसके बावजूद नहीं। नज़ीर भाई देखें, एक हदीस जब अपनी शान शौकत में पूरी हो जाती है ना, तो चाहे वो ज़ईफ ही क्यों ना हो उसको मानना पड़ता है। अब फिरकों वाली जो हदीस है, इस
सारे अपने अपने फिरके बना के बैठे हुए हैं आज ही, हमें नजर आ रहा है। कहता है कि मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं वहाबी हूँ, कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, सुन्नी, शिया, चिश्ती, कादरी, सारे के सारे बना के बैठे हुए हैं। इनके अपने उलमा इसको ज़ईफ करार दे के गए। क्यों मानते हो भाई उस हदीस को? हाँ, उसमें वो नजीर भाई, फरमाया ना जब कि एक मैं आखिरी हदीस नबी, अपने मैं आखिरी नबी हूँ, शानो मेरे शौकत बाद से कोई पूरी नबी हो नहीं। जाती है ना, जी चाहे मैं वो ज़ईफ ही क्यों ना हो, तो फिर वो ज़ईफ नहीं रहती। नहीं, वो उसमें हदीस में दो चीज़ें बताई, दज्जाल के 30 दज्जाल झूठे नबी वो आएंगे, और एक है कि मेरे बाद मैं खातमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये हवाला। और फिर वो उसके रावी को वो कह रहे हैं कि पॉकेट बुक में जो है ना ऑब्जेक्शन किया गया किसी साहबी पर, उनको गलत करार दिया गया कि पॉकेट बुक में भी जब मैंने शार्ट सहाबी, अगर किसी सहाबी के ऊपर जिरा है तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना वो किस तरह। सफी भाई बड़ा करें जरा। यही मैं वो सैफी भाई को कह रहा हूँ ना कि देखें जरा वो जरा जो पॉकेट बुक में हुई है उन्होंने की है, वो जरा क्या दुरुस्त है या क्या है? क्या हुआ? एक मिनट रुको जरा ना, पहले बैकग्राउंड चेंज कर लो अपना। नीचे का यार शो ही नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं लाइव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें तो शो हो रहा है। ऑफ कर रहे हैं, ऑप्शन किसी और के पास भी है? मुझे कुछ नहीं शो हो रहा है नीचे। मैंने तो लाइव ही उड़ा दी थी अपनी, सब क्लियर नजर आ रहा है। दोबारा से आया हूँ तो इसने बता दिया, इसने कहा रिज्यूम कर लो। मैंने कहा चल ठीक है। रिज्यूम करने पर भी नहीं हो रहा, डबल टैप नहीं हो रहा, हैंग हो रही थी उसकी वजह से ब्रॉड। तो फिर मैंने कहा नहीं, रिज्यूम की, फिर मैंने दोबारा तो हो गया है। वो डबल टैप नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा, हैंग हो रही थी वो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ को हूँ और गैर अहमदी कहाँ को है। ब्रॉड ही में दिखाई नहीं कुछ दे रहा था। मैंने लाइव ही उड़ा आपकी लेकिन आवाज सही आ रही है। ओपन की तो पता चला रिज्यूम का ऑप्शन इधर मुझे हो रही है ना शो, आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ब्रॉड हैंग हो रही है। ठीक है, चले खैर। हाँ भाई बताओ क्या सवाल है? अच्छा सभी भाई, ये नज़ीर भाई का सवाल है ये ना कि वो पॉकेट बुक से है कि वहाँ पे जो 30 दज्जाल वाली जो हदीस है और उसके बाद वो एक लान नबी बादी उनका एक रावी है, उसके ऊपर जो है ना वो जिरा है। ये पॉकेट बुक में ये कोई इस तरह का सवाल था। तो नज़ीर भाई दोबारा से जरा सवाल रखिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो सैफी भाई पॉकेट बुक से उन्होंने एक शॉट वहाँ लगाया हुआ है अपनी स्क्रीन पे, और वो उस पे जो ये हदीस पॉकेट बुक में उन्होंने ली है ना, तो उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनके रावी भी जो है साहबी हैं और उन पर उन्होंने उसको गलत करा दिया कि इनकी ये हदीस गलत है। तो उस पर वो कैसे कह सकते हैं उस साहबी को कि ये रावी जो इनके गलत हैं, ये उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो। तो उसके बारे में जरा बताइए। तुम्हें इख्तियार कौन सी हदीस है, एक तो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन बिलफर्ज मुहाल अगर है भी तो कहने के तो कौन सी आफत आ गई। कहने के तुम अगर इतने बड़े इंसाफ के कलिंदे हो ना, इतना तुम्हारे अंदर मुनसिफ घुसा हुआ है, सबसे पहले उसकी आमिर नज़ीर की दाढ़ी पकड़ के फाड़ो। यहाँ तो एक सहाबी के ऊपर हमला किया, उसने चार हदीसों को रद्द किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करी थी सिर्फ एक मुहद्दिस के कहने पर, कि एक मुहद्दिस ने ये बात कह दी और उसने वजह भी पेश नहीं करी। मैंने हदीस पेश करी थी इनके सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की कसम खाई। जब आमिर नज़ीर के सामने ये हदीस पेश करी, टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहने लगे तो हदीस ही ज़ईफ़ है। मैंने कहा 3 तरीक से है ये हदीस, एक साहबी नहीं है इसे बयान करने वाले, 3 साहबी हैं। उसने कहा नहीं हमारे मुहद्दिसीन ने कह दिया तो ज़ईफ़ है। मैंने कहा कौन से रावी के ऊपर जिरा है? कहता वो नहीं मुझे पता किस पे है। मैंने कहा भाई जब किसी हदीस को ज़ईफ़ करार दे रहे हैं तो कोई जिरा भी होगी ना। कौन सा रावी है वो जिसके मुतल्लिक तेरा मुहद्दिस कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतान बांध दिया? कौन सा रावी है वो जिसने बहुतान बांधा? नाम बता। कहता है इसका जवाब तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा क्या? मुझे नहीं पता किसने बांधा, मुझे नहीं पता कब बांधा, झूठ। ये था उसका जवाब। उसने कहा भाई तुम जाकर सबसे पहले उसका गिरबान पकड़ो, फिर हमें पता चले कि हाँ भाई तुम वाकई इंसाफ से काम लेने वाले बंदे हो। ठीक है, अब पता नहीं कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर डेरिंग नीचे बैठे हैं, अगर दूसरी बात ये है ना, बताएंगे आपको हदीस कौन सी है ये, अगर उनको ले वो वो आप जाकर पूछो उनकी ब्रोड पर। मुझे तो जरूरत नहीं है लेने की। एक मिनट रुको ना ब्रायन भाई भाई नज़ीर साहब देखें, हमें तो ज़रूरत नहीं है लेने की। आपका बड़ा याराना लगता है उनसे, हमने कभी आपको रोका नहीं कि भाई आप जाकर उनके साथ बात ना करो, लेकिन हमारी ब्रोड पर आकर के आप हमसे ना कहोगे भाई उनको ऊपर ले लो। आपका याराना लगता है, आप दोस्त हैं उसके, आप जिगरू हैं उसके, आप जाके लंगोटी बांध कर खेलो उनके साथ। हमें कोई शौक नहीं उनको अपनी ब्रोड पर लेने का। सैफी भाई अगर वो सवाल रखते हैं तो जवाब दें ना।
कोई बात नहीं। तो आप दो ना, ना हमें नहीं देना है जवाब, हमने दे दिए है जवाब, हमें 0/0 ही मिला है उधर से। आपको उम्मीद है, आप ट्राई करो, हमने आपको कभी मना नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा आपको कि भाई ना जाओ उनके ब्रोड पर। नहीं वैसे जिस साबुन को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ना, सुने मेरी बात, जिस साबुन को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ना, और मुझे पता है उससे दाग नहीं जाते, फिर मैं वो साबुन इस्तेमाल नहीं करता। इनसे बड़ी लंबी बातें हुई है, 0/0 ही निकलना है मामला। चलो अगर अभी खुली खुली शिकस्त दी है या बनी आदम इम्मा यार। हाँ तो कोई मसला नहीं है, आप करें, आपको छोड़ा हुआ है ना इस काम के लिए हमने। चलें अगर वो अच्छी आपको रखा हुआ है ना इस काम के लिए मैंने, नजीर भाई मैं कह तो रहा हूँ आपको रखा हुआ है ना इस काम के लिए। आप कब करोगे बात? आपने नहीं करनी है बात उनसे, हम तो कर चुके बहुत टाइम से, 2012 से करता आ रहा हूँ, पूछ लो आप उनसे बात। आप भी तो हाथ साफ करो ना उनके ऊपर, बहती गंगा गंगा बह रही है, आप भी हाथ धो उसके अंदर। सैफी भाई मेरा इल्म उस लेवल का नहीं है ना, मैं उनको उस लेवल पे जवाब नहीं दे सकता। तो जाते क्यों हो फिर, जाते क्यों हो फिर? ये जाने से पहले सोचना चाहिए ना कि जिस पहलवान के साथ मैं कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा हूँ वो मेरी जोड़ का नहीं है। पहलवानी जब करवाई जाती है ना, अखाड़े में कूदने का सबका दिल करता है, लेकिन वहां पे कुछ रूल्स होते हैं। वो कहते हैं कि भाई जिस लेवल का जो बंदा होगा ना, कुश्ती वो लड़ेगा। ये नहीं है कि 12 साल के बच्चे को लड़वा दिया है 45 साल के जवान से, उसने कहा भिड़ जा इससे, क्योंकि तू भी पहलवान और ये भी पहलवान। फिर इंसान को अपनी औकात देख कर काम करना चाहिए। जब वो खल के अंदर सर दे दे ना नजीर साहब, फिर मुसल से ना घबराओ। ये चीज़ आपको उनकी ब्रॉड पर बैठकर गुफ्तगू करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मेरे में इतना इल्म नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं। अब वहां जाते हो आप, वो 2-4 पटके आपको देते हैं, फिर आप कहते हो, उसने कहा सैफी भाई उनको जरा ऊपर बुला लो यार, उनके 2-4 सवाल हैं, तमीज से बात करेंगे, उनका जवाब दे दो। मैं क्यों दूं भाई, मुझे कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है? मेरे पास और भी बहुत लोग हैं भाई बात करने के लिए, जवाब देने के लिए। एक अकेला वही थोड़े ना मेरे जिम्मे। बिल्कुल। एक बात करना चाहूंगा, माजरत है, ये कौन सी तमीज से बात करता है? इतनी लंबी इसकी जुबान है। अरे छोड़ो यार, दफा मूड खराब हो जाएगा मेरा, गुस्सा हो। तमीज से इसने कभी बात की है जिंदगी में? इसके माँ बाप ने इसको कभी तमीज नहीं सिखाई, इसको इसी वजह से बैन किया था। इसको बात करने की तमीज नहीं है। और ये ऐसा है, ये हजूर की किताबों पर झूठ यार, एक तो म्यूट करने को ऑप्शन चढ़ाता रहे और गालियां देता रहे, इसको हम ऊपर ले, ऐसी की तैसी नहीं तुम्हारी। जब से इसको बैन किया, हर टाइम कुत्ते की तरह नीचे आके ना हाँपता रहता है कि मुझे ले लो ले लो ले लो। बेटा मेरे जीते जी तुझे कोई नहीं लेने लगा, ये तू भूल जा। कैसे करता है अमर भाई? मेरी हाँपता है जिस तरह कुत्ता नहीं हाँपता, अब नीचे आके हाँप रहा होता है। कभी किसी को भेज रहा होता है कि मुझे ले लो, कभी किसी को भेज रहा होता है मुझे नीचे ले लो। पुत्र तुझे कोई नहीं लेता इसके बाद। असल में हम उमर भाई, हम तो इनको वैसे भी अपने जवाबात दे चुके हैं। आजकल तो इन्होंने एक दूसरी ब्रॉड से भी बाइकाट। एजाज भाई, सैफी भाई इसको कोई 15 दफा तो एम्बुलेंस में भेज चुके हुए हैं, और कितनी दफा भेजे? हाँ जी, कभी एक रट्टे लगा के आए होते हैं, कभी दूसरी आईडी से। वो जो इनके अपने मुसलमान भाई है पीर अस्कलानी साहब, उस दिन भाई उनकी वीडियोस चल रही थी इन बेचारों की जो उन्होंने की है, और वो भी मिर्जा साहब की किताब से। इनको शर्म नहीं आती इससे भी? बिल्कुल, मैंने भी सुनी थी वो बात। वो गुफ्तगू आपके अपने भाई जो है ना, वो आपको बता रहे हैं कि भाई आंखें खोलो, यहाँ पे वो बात ये कर ही नहीं रहे आप जो एतराज कर रहे हो। फिर भी आप ये नहीं कि बस सिर्फ बोलना ही जिसको आता है वही मुनाजिर है। हक की बात को तस्लीम करना और सच पे सच को मानना भी जो है ना, ये भी होता है। ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं होती कि मैं खामोश हो गया तो बस मैं जीत जाऊंगा। मैंने हक की बात तस्लीम। ये उस दिन ना पीर अस्कानी को बिठाकर समझा रहे थे कि आप जो है वो मिर्जा साहब की किताबों के बारे में इस तरह बोलते हो, तो आप अपने जो मुसलमान भाई है उसको शर्मिंदा करते हो। उसको समझा रहे थे बैठ के ये लोग कि आप ऐसे ना किया करो। लाइव पे बैठ के समझा रहे थे। ये सारा ये आमिर नजीर और इसके जो जितने भी चट्टू बटू बैठे होते हैं साथ। और हमारे लाइव को क्या हुआ है, नीचे का कुछ शो ही नहीं नजर आ रहा है। जो हमारे अहमदी भाई है जो आके ये कहते हैं इनसे बात कर ले, इनसे बात कर ले। आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको शायद लेट समझ आती है ये चीज़ें, कुछ बंदों को जल्दी समझ आती है कि किन से बात करनी चाहिए किन से नहीं। अगर आपका दिल है, आपको कोई नहीं रोकता। देखिए आप लोग करें बात, हमारी नज़र में जो है ना इन पे हुज्जत तमाम है, इनसे हर एक चीज़ पे बात हो चुकी है, तो इससे टाइम का ज़िया है। और लोगों को, हम ये नहीं चाहते कि लोगों का टाइम ज़ाया हो। सिर्फ ये तो नहीं है दुनिया में कि हम सिर्फ इन्हीं से ही बात करते रहे। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसके साथ, अगर इजाज़त हो। हजूर का भी फरमान आया था
ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हजूर ने भी फरमाया था कि आप लोग तबलीग करते हैं ऑनलाइन, तो उस जगह पे करें, उन लोगों से करें जहाँ पे फ़ायदा भी हो, टाइम वेस्ट ना करें। जो हम देखेंगे तो हम सारों, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें गालियाँ देते हैं, ठीक है, उनका काम गाली गलौच है, तो इन लोगों से फ़ायदा नहीं है तबलीग करने का, बात करने का, क्योंकि टाइम वेस्ट है। क्योंकि इधर बिल्कुल काफ़ी अच्छे गैर अहमदी भी आते हैं, हमारे भाई गैर अहमदी भाई, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, सवालात करते हैं, उससे हमें भी फ़ायदा होता है और उन्हें भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। यार ये क्या मसला हो रहा है यार, मुझे कमेंट्स वगैरह शो नहीं हो रहे अच्छा, हैं। सभी भाई एक दफा दोबारा करें, स्वीप दोबारा रिज्यूम करें। ये स्क्रीन को जो है ना, स्क्रीन को दूसरी तरफ से स्वीप करे, अपने जो है ना राइट से लेफ्ट की तरफ आप स्वीप करें तो कमेंट आ जाएंगे सामने। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਇਹ ਅਫਤਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਲਕ ਅਫਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਬ